So welcome back everyone. I think yesterday we were talking about the equations of motion with the help of graph, or let us say that we were about to study the graphical method to derive the equations of motion, and in that case yesterday we had derived the first equation of motion, that was v is equal to u plus at with the help of the graph, and that was the relation between velocity and time. So today we want to derive the second relation, which is known as relation between displacement and time. We want to describe the relation between displacement and time. The relation between displacement and time. So friends, see, as we all know, displacement is given by us and time is given by t. So now let us suppose that if the same object here, only in the same graph, only here we are studying, if that same object is accelerated and the acceleration is a, it covers the distance a within the time t. Suppose this was the object from over here, it was at its initial position at point D, it had been with a continuous change in velocity matlab acceleration, it reached up to a point B, then it covered this total time, it covered this total distance, or let us call that he totally covered this all the distance in particular time t. And with the help of this, now we have to talk about the, let us say that we will be talking about the distance covered by the object during this all the journey. So from where is he starting his journey? Right from point, let us call it from point O to D, then D to B, and again E, or unless we can say that D to O to E, and E to B. It would be easy for us if we consider over here, see, there is a triangle DAB and there is a quadrilateral DOE, or let us call a rectangle DOAE. So combining these both the figures, we will get a quadrangle, or let us call a quadrilateral. So now we know that while we are talking about it, so therefore we have a formula where S is the area, that is area of quadrilateral. Which is that quadrilateral? DOEB, area of quadrilateral DOEB. So in this area we get two diagrams over there, that is area of a rectangle, what is that? Rectangle DOEA, see over here, rectangle DOEA, this rectangle, this is the portion which is the rectangle here, okay, and the triangle DAB, and the triangle DAB plus area of triangle DAB. Okay, so now we should be putting the area of rectangle, we know that is side into side, so side DO into side AD, or let us call that side DO into side OE will do, or even you can take here AE into OE, anything. If there is something given according to the book, we will go according to it, that is OE and AE. So we will write there area of rectangle is equal to the multiplication or the product of its sides AE into OE plus, now area of triangle, as we all know that what is area of triangle? Half into, yes, obviously we know that half into base into height. So the base is DA and the height is AB. So let us write here AB into DA. Okay, I hope you all are clear with it. But now when we see over there in this diagram, इस डायग्राम में अगर आप देखो तो AE is equal to OD and OD का मेजरमेंट है U. It means that here I will write AE is equal to U, और OE जो है यहाँ पे हमें दिया हुआ, that OE is nothing but the time, total time, मतलब क्या होगा यहाँ पे? OE is equal to T. Then further ahead, now we know that here ये सेम होगा DA and OE, T होगा, ओके. देन अगर अभी और हम फिगर को अच्छे से प्रॉपरली देखें तो आपको पता चलेगा जो AB है यहाँ पे, AB, सी ओवर देयर, ये AB पोर्शन है, करेक्ट. सो इस AB पोर्शन का मेजरमेंट हमने क्या निकाला था कल? आई थिंक यस्टरडे जब हम देख रहे थे
तो दैट वी हैड कैलकुलेटेड दैट ए बी एज ए टी, सी ओवर हियर, यहाँ पे बी ई इज इक्वल टू बी ए प्लस ए ई निकाला था, सी ए इज इक्वलेंट, ये देखो सी डी इज इक्वलेंट टू ए बी किया था हमने, और यहाँ पे ए टी निकाला था कल का पोर्शन। ओके, इफ यू कैन सी दैट इट वॉज यस्टरडेज डिराइव्ड ओनली, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम यस्टरडेज पोर्शन। ओके, वही सेम ले रहा हूँ मैं, जो कल सी डी आया था, देख लो कल के डायग्राम में क्या आया था, यहाँ पे सी डी आया था, सी डी इज इक्वलेंट टू ए बी, और कल हमने सी डी लिया था ए टी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए टी होगा हमारे पास। सो नाउ ए बी इज इक्वल टू ए टी, then again while moving ahead we will come to the next things also. What is dA now? dA क्या है यहाँ पे, dA भी टाइम t है, AB is equal to AT and DA is equal to टाइम t। तो इन सारे वैल्यूज़ को अभी यहाँ पे पुट कर दो, व्हाट वुड बी S इज इक्वल टू U इंटू OE मतलब T प्लस हाफ AB मतलब बताओ, ए बी मतलब ए टी इंटू डी ए मतलब टी। ओके, अभी यू जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, दो इनिशियल वेलोसिटी वी नो दैट क्या होगा अभी यहाँ पे, फिर टोटल हम अगर देखते हैं तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी ए टी स्क्वेयर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगा, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इसे हम बोलेंगे न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड ऑब्वियसली देखो इट इज रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, यस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, हियर टी स्क्वेयर एंड टी दीज आर रिप्रेजेंटिंग द टाइम, सो इट इज द प्योर रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इटसेल्फ। ओके, होप आप लोग यहाँ तक क्लियर हो इस पोर्शन से। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कि मतलब इक्वेशन जो है अभी दूसरा क्या देखा हमने, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम देखा, करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि वी विल नाउ डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। सो नाउ वी हैव सीन इन द ग्राफ ओवर हेयर, जो अभी ग्राफ आपको दिख रहा है एट द राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन, तो ये जो ग्राफ हम यहाँ पे देख रहे हैं, वी हैव सीन फ्रॉम दैट ग्राफ दैट वी डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t विद द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DOEB, मतलब यहाँ से ये डायग्राम पूरा कवर किया था हमने, बराबर। सो नाउ DOEB एक ट्रेपेजियम भी है, DOEB जो है एक ट्रेपेजियम भी है। So with the help of this formula now we can derive one more displacement over here, यहाँ पे और एक displacement हमें मिलेगा, that is S is equal to area of trapezium, ट्रेपेजियम कौन सा है हमारा, DOEB। सो वी नो दैट ट्रेपेजियम का एरिया, हाँ ज्योमेट्री अगर आपकी परफेक्ट है तो यू कैन टेल इट क्वाइट इजीली, दैट इज हाफ इंटू ये जो सामने के पैरेलल लाइंस होते हैं, इन पैरेलल लाइंस की क्या की जाती है, यहाँ पे एडिशन की जाती है, द एडिशन ऑफ द और द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है बाय द डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल लाइंस, मतलब जो पैरेलल लाइंस है उनका एडिशन, और उसके बाद जो दो पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसका डिस्टेंस होगा। ओके, सो let us consider that half into sum of parallel lines into distance between parallel sides। ओके, तो अभी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स जब कहा जाता है मुझे, तो मेरे सामने पैरेलल साइड्स कौन से है, OD है और AE है। ओके, सॉरी BE, OD और BE, तो OD प्लस BE, और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद द डिस्टेंस सेपरेटिंग इट, दैट इज OE। ओके, सो नाउ अभी वैल्यूज पुट करना है हमें, वी नो दैट नाउ OD का वैल्यू क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी U है, तो हाफ इंटू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले, OD इज इक्वल टू U, देन BE जो है हमारा, BE का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज BE, BE हमारा यस्टरडे हमने देखा था, दैट इज आवर वेलोसिटी V। देखो
बी ई क्या है, बी ई इज इक्वल टू बी ए प्लस ए ई, बी ए प्लस ए ई मतलब हम लोगों ने कल उसको डिराइव किया था, बी ई इज इक्वलेंट टू वी, कल का ही है हमारा पोर्शन, मतलब जो कल हमने बेसिक देखा था उसी को मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो दैट इज बी ई इज इक्वल टू वी एंड व्हाट इज ओ ई, ओ ई इज नथिंग बट ये क्या है, एक्स एक्सिस पे है तो दैट इज टाइम, सो सिंपल है, इंटू टाइम टी। ओके, तो नाउ यहाँ पे u प्लस वी हमें दिया है, बट वी नो दैट, हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो एक पहले रिलेशन था, कौन सा रिलेशन था हमारे पास पहले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, बराबर। तो अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वैल्यूज़ निकालने होंगे कि मतलब भाई किसका वैल्यू क्या होता है यहाँ पे। तो नाउ यहाँ पे हमें u प्लस वी तो ऑलरेडी है, तो यहाँ t का वैल्यू निकालेंगे हम। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ t देन, जो u है वो इधर आके क्या होगा, सब्सट्रैक्शन में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जो a है वो डिवाइड होगा एंड इट वुड बी द वैल्यू ऑफ t। मान लो कि मतलब मैं ये कहीं इसको एक नाम देते हैं, इक्वेशन कोई भी दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो, कुछ भी दे दो। ओके, एंड देन मान लो कि इसको मैं इक्वेशन 2 नाम देता हूँ। ओके, तो नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज़, अभी इस वैल्यूज़ को पुट करना है, t की वैल्यू को वहाँ पे पुट करो, हाफ इंटू यू प्लस वी रख दिया, और उसके बाद t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू एंड डिवाइडेड बाय a एज इट इज़। ओके, तो अभी सिमिलर थिंग्स है अभी यहाँ पे हमारे पास, कि मान लो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखते हैं कि मतलब ये जो है हमारा u प्लस वी जो है, तो दैट कैन बी रिटन एज v प्लस यू ऑल्सो। तो इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, v प्लस यू और इधर v माइनस यू डिवाइडेड बाय 2a। ओके, सेटिस्फाइड है। तो नाउ देखो अभी ये यस एज इट इज़ है यहाँ पे, आई थिंक यू कैन सी इट। ओके, देख सकते हो आप लोग, यस एज इट इज़ है यहाँ पे, जो ऊपर से लिया था हम लोगों ने यहाँ का। तो यस इज इक्वल टू, अभी v प्लस यू एंड v माइनस यू मतलब a प्लस बी एंड a माइनस बी, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या मिलेगा हमें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अभी ये 2a जो है इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, दैट वुड बी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो फिर ये जो माइनस में है इधर आके प्लस हो जाएगा, या फिर मैं इधर से लिखता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज दिस इज द न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेट अस कॉल इट न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत जा रही है समझने में, और इफ़ लेट अस कॉल दैट इफ़ यू आर गेटिंग अ लिटिल बिट कंफ्यूज, तो बस कल का एक जो हमारा पहला वाला ये था फॉर्मूला था हमने निकाला हुआ, बस उसको प्रॉपरली एक बार रिवाइज करना। इफ़ यू आर गेटिंग इट प्रॉपर, यहाँ पे v की वैल्यू किस तरह से आई है, a की वैल्यू क्या है, और ये ग्राफिकल फॉर्म अगर प्रॉपरली आप समझ रहे हो, देन यू ऑल आर क्लियर विद दिस very well. Okay, so hoping that you all are clear with this, let us stop here today and let us meet with the next discussion of uniform circular motion in tomorrow's lecture. Till then, have a nice day. Bye.